پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ وہ جو ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا اور میرا بھی خدا ہے، اور مسیح یسوع میں آسمانی باپ، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کے وسیلہ سے آج یہ انمول لمحات میرے جیون میں بخشے گئے کہ یک بار پھر آپ پرستاروں کے ساتھ مل کر پرستش کے وسیلہ سے اور دعا گو بھائیوں بہنوں آپ کے وسیلہ سے برکت پانے والا ہوں۔ شکر ہو خداوند کا، اور آپ سب کے لیے بھی جو ہمارے ساتھ آن لائن خداوند کے اس زندگی بخش کلام کی بھوک اور پیاس محسوس کرتے ہوئے ہمارے ساتھ ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند آج اپنے زندگی بخش اور انمول اور بیش قیمت کلام کے وسیلہ سے مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہونے والا ہو۔ زبور 125 پر ہم آج بات کریں گے۔ یوں ہم آج کے دن زبور کی کتاب پر ہی باہم مل کر سیکھتے ہیں، اور بہت کچھ ماضی رفتہ میں اس زبور کی کتاب سے ہم نے پایا ہے۔ 125 زبور کی 5 آیات ہیں، اور آج ہم ان 5 آیات کا نچوڑ مختصر سے اس وقت میں نکالیں گے اپنے لیے اور اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے۔ لیکن قبل اس کے کہ میں 125 پر کچھ کہوں، اتنا کہنا چاہوں گا نظر ثانی کے طور پر، پس منظر کے طور پر، کیونکہ آپ میں سے کئی ہمارے ساتھ پہلی دفعہ آن لائن ہیں، فیس بک پر یا یوٹیوب چینل پر۔ اس لیے اس بات کا ذکر کرتا چلوں کہ 120 سے 134 تک ہیکل کی زیارت کے یہ گیت ہیں، یہ زبور گیت ہیں اصل میں، اور یہ عبرانی شاعری میں ہے، اور یہ 15 گیت ہیں جو ہیکل تک کی جو سٹیئرز یا سیڑھیاں تھیں، جب ہیکل کی زیارت کرنے والے اسرائیلی لوگ شہر یروشلیم آتے تو ہیکل تک رسائی کے لیے ان کو 15 سٹیئرز اوپر کور کر کے ہیکل کے مین دروازے تک جانا پڑتا تھا، اور یوں وہ ان 15 مزامیر کو یکے بعد دیگرے گایا کرتے تھے، اور یوں یہ 15 سٹیئرز مکمل ہوتی تھی۔ یہ صرف ایک مختصر سا تعارف ہے جو ہم آلریڈی اس سے پہلے جب 120 کا آغاز کیا تھا تو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ یہاں پر اس زبور میں خدا کے ساتھ، اور جب ہم زبور کی کتاب میں ہیں تو میں یوں کہوں گا کہ یہوہ خدا کے ساتھ شخصی طور پر، خاندانی طور پر، قومی لیول پر، اور ایون آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے جو عہد جدید کے لوگ ہیں اور نئے عہد کے فرزند ہیں، ہمارے لیے بھی خدا کے ساتھ تعلق اور رشتے کو استوار کرنے کے لیے ایک فارمولا یہاں پر دیا گیا ہے ہمیں 125 میں، یا میں یوں کہوں گا کہ ایک ایسا راز، ایک ایسی بھید کی بات ہمیں بتائی گئی ہے عہد عتیق میں بھی اور عہد جدید میں بھی، کہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسے اور زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ اور وہ گر
और वो जो रम्ज की बात और मुकाशफा की बात है, भेद की बात है, वो है खुदा पर भरोसा। हालेलुया, खुदा पर भरोसा। देखिए, कहने से तो बहुत कुछ कहा जा सकता है कि मेरा खुदा पर भरोसा है जी, मसला ही कोई नहीं, मेरा खुदा पर ईमान है, मेरा खुदा पर तकिया है। इससे ऊपर ऊपर कहना, यानी गर्दन से ऊपर ऊपर कहना, यह और बात है। लेकिन दिल की अथाह गहराइयों से यह कहना कि मेरा खुदा पर भरोसा है और जिंदगी के हर कदम पर इस बात को साबित करना कि वाकई मेरा खुदा पर भरोसा है, बहुत बड़ी बात है। और ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। आप किस साइड पर हैं, खुद सोचें। मैं अपने आप को इस कलाम के मुताबिक तोलता हूं कि मैं किस साइड पर हूं। जरा सोचना है और गौर करना है अपने आप पर, और फिर सोचते ही नहीं रहना, कुछ अमली तौर पर स्टेप भी लेना है, जो बहुत जरूरी और अहम तरीन बात है। साथ ही साथ जब मैं इस 125 की पहली आयत को तलावत करता हूं तो लिखा है, जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं। कौन? जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, वो कोहे सयून की मानिंद है, जो अटल बल्कि हमेशा कायम है। ओके, एक दफा फिर मैं अपने लफ्जों में, कि जो खुदा पर भरोसा करते हैं, ईमान रखते हैं, खुदा पर उनका यकीन है, उस पर तकिया करते हैं, उस पर उनकी तवक्कल है, वो किसकी मानिंद है? यहां लिखा हुआ है, वो कोहे सयून की मानिंद है। कोहे सयून की मानिंद। क्यों? क्योंकि कोहे सयून की बाबत लिखा है, जो अटल है और हमेशा कायम है। हालेलुया। बहुत अमीक बातें यहां पर मेरे और आपके लिए सीखने के लिए है। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो खुदावंद पर भरोसा करते और खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, उनके लिए यहां पर एक खास वादा है खुदा की तरफ से। क्योंकि जबूर नवीस पाक रूह की तहरीक से इन आयाते मुकद्दसा को लिख रहा था, और वो ये कहता है कि खुदा पर भरोसा करने वालों के लिए वादा है, और वो वादा ये कि वो कोहे सयून की मानिंद है। और बाय द वे, सयून या सहून वही कैदी सहूनी, ये यरूशलेम का कदीम नाम है। और जब हम कोहे सयून की बात करते हैं, तो हम शहरे यरूशलेम और हैकल जिस पहाड़ पर कायम थी, हम उस कोहे सयून की बात करते हैं, जो बहुत बड़ा पहाड़ तो नहीं था और ना ही है, लेकिन बाकी इलाका की निस्बत वो ऊंची जगह और ऊंचे मकाम पर है। और याद रखिए कि यहां जब यह लिखा है ना कि वो सयून की मानिंद है, कोहे सयून की मानिंद है, और वादा क्या है
کہ جو तवक्कुल करता है खुदा पर या हव्वा पर, आसमानी बाप पर, वो एक ऐसे पहाड़ की मानिंद है, कोहे सयून, जो कायम है और अटल है और जिसको कोई सरका नहीं सकता। गौर तलब बात जो यहां पर है वो ये है कि हम यानी मैं और आप, देखिए मैं जब भी आपके साथ मिलकर सीखता हूं ना, तो मैं कभी भी ये नहीं कहता आपको ये करना चाहिए और आप ऐसे हैं और आप ऐसे क्यों और आप ऐसे वगैरह 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 वगैरह। नो, मैं सीगा जमा हम का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ हूं, हम एक ही बेड़ी के सवार हैं, जिंदगी का सफर हम एक ही तरह करते हैं। शायद वो खिदमत जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं, और जो मेरे पास है शायद वो आपके पास नहीं, लेकिन जिस दुनिया में मैं और आप हैं, जो सफर में और आप करते हैं, वो एक ही तरह का सांझा है। जिन तजर्बात से हम गुजरते हैं, हालात से गुजरते हैं, वो हमारे बराबर हैं। तो ये बातें आपके लिए ही नहीं है, ये बातें मेरी जात के लिए भी हैं। और बात यह है, इस आयत में क्या है मेन बात? खुदा पर भरोसा करना। करोगे तो तुम फिर सरकने के नहीं, हमेशा कायम रहोगे। यह बात है जो यहां पर हमें बताई गई है। और याद कीजिए, हम खुदा पर भरोसा और तवक्कुल उस वक्त तक नहीं कर सकते, सुन रहे हैं जी, कान डबल खोल कर सुनिएगा, क्योंकि मैंने ये पहले सीखा है और मेरी जात के लिए भी है। क्या? कि हम खुदा पर भरोसा और तवक्कुल उस वक्त तक नहीं कर सकते और नहीं कर सकते जब तक हम जिन दूसरी चीजों पर भरोसा किए हुए और तवक्कुल किए हुए हैं उनसे अपनी नजरें हटाएंगे नहीं तो। आमीन। खुदा पर भरोसा हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हम दूसरी चीजों जिन पर हमारी निगाहें हैं उनसे हम अपनी निगाहों को हटाकर खुदावंद अपने खुदा की तरफ ना लगा लें। मुनज्जिए आलमीन मसीह खुदावंद ने क्या फरमाया? तुम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। दुआ बेड़ियां ते पैर होणगे ना ते लत्तां चिर जाणगियां। और यही बात है यहां कि एक के हो जाओ। अगर खुदा पर भरोसा करने के दावेदार हो तो फिर उसी पर भरोसा करो। निगाहों में, सोचों में फिर वही हो, तब तुम कायम होगे और तब तुम सरकोगे नहीं और तब तुम अटल जमे रहोगे। यह है राज की बात जो यहां हमें इस पहली आयत में हमें मिलती है। याद कीजिए कि वही खुदा जिस पर भरोसे की बात हो रही है वो हमारा मुहाफिज है। तेरा राखा न कदी उंगलावे। हाँ, वो हमारा मुहाफिज है। और याद कीजिए कि कोहे सयून कायम रहने वाला पहाड़ है। कौमों और उम्मतों ने
उसके खिलाफ बड़ी सफ आराई की, लेकिन उस पहाड़ को तो मासवा एक के जो पहाड़ों को बनाने वाला है कोई हिला नहीं सकता और सिरका नहीं सकता। और अगर खुदा मुझे और आपको कोहे सयून से तशबीह देता है अपने बंदा के जरिया से कि फिर तुम कोहे सयून की मानिंद होगे, फिर हटोगे नहीं, फिर सरकोगे नहीं, ते है कोई मां दा लाल सानू अपने पैरां तू हटाउन वाला ते सरकाउन वाला? कोई भी नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हमारा खुदा पर भी और फिर ही दुनिया पर भी भरोसा है। और काश के मैं भी और आप भी ये कह सकें कि किसी को तो घोड़ों पर और किसी को रथों पर भरोसा है, लेकिन मेरी आस खुदावन अपने खुदा पर है। आप देखिए बाइबल मुकद्दस में इंसान को कई एक चीजों से तशबीह दी गई है, जिसमें हम अपने आप को भी जरा देख सकते हैं। इधर कोहे सयून के कायम और जमे रहने की बात है, दूसरी तरफ खुदा के कलाम में इंसान को ख्वाबो याकूब का खत देखें, समुंदर की लहर से भी तशबीह दी गई है, जो हवा के दोष पर उछलती बहती है। सब कुछ समुंदर और लहरें मिक्स कर देती हैं, और समुंदर में यानी जो सकूनत है या जो सकूत है वो नहीं है। इंसान को रेत से भी किताब मुकद्दस के मुताबिक तशबीह दी गई है, एक लिहाज से मुवाजना करने के लिए कहा गया है। जो रेत कायम नहीं रहती, सरकती रहती है, और पांव भी उस पर हो तो वो और नीचे और नीचे और नीचे जाएगा। कहीं हम समुंदर की लहर और रेत की मानिंद तो नहीं। इंसान के जज्बात के एतबार से उसको आंधी और हवा से भी तशबीह दी जाती है। सोचना है हम हालात की आंधी में कहीं बह तो नहीं जाते हैं। शमाउन का मतलब है सरकंडा। मैं शमाउन पतरस की बात कर रहा हूं। आलम कहते हैं कि इसका मतलब है हिलने वाला। सरकंडे से सरकंडा नाम था, लेकिन मसीह खुदावन के पास जब मुकद्दस पतरस आ गए, मुकद्दस बने, और उसके बाद मसीह ने आपकी बाबत कहा तू पतरस है, यानी चट्टान, पेट्रोस। इस बात को समझने की जरूरत है। और हम अपने आप को कहां पाते हैं, यह सोचना है और गौर करना है। आयत नंबर 2, जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है, यरूशलेम पहाड़ों से जैसे घिरा है, वैसे ही अब से अब तक खुदावन अपने लोगों को घेरे रहेगा। हालेलुया। बाज़ौकात हम मज़ामीर पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं जी, जो खुदावन पर तवक्कल करते हैं वो कोई सयून की मानिंद है जो अटल। खत्म नहीं हुआ, कितनी आयतें हैं। और फिर हम आगे जाते हैं, जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ वैसे ही उस पर अबद से अबद तक खुदावन अपने लोगों को घेरे हुए। शायद आप नहीं पढ़ते, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही 120 किलोमीटर पर हावर पर पढ़ते हैं, जो दुरुस्त नहीं है।
जब हम आहिस्ता आहिस्ता इस कलाम को पढ़ते हैं, तलावत करते हैं, संजीदगी से कुछ हासिल करने के लिए खुदा अपने पाक रूह के वसीला से, जिसके जरिया से यह कलाम लिखा गया, इन भेदों और राजों को हम पर खोलता है। फिर से, जैसे यरूशलेम, शहरे यरूशलेम की बात हो रही है, जहां पर हैकल भी थी, कोहे सयून भी पहाड़ों से घिरा है। शहरे यरूशलेम अगरचे हैकल भी एक छोटे पहाड़ पर थी, और वो लोग जो यरूशलेम गए वो जानते हैं कि वो थोड़ा ऊंची जगह पर है। लेकिन जिस वक्त ज़बूर नवीस ये गीत लिख रहा था, मज़ामीर लिख रहा था, उस वक्त भी यरूशलेम और कोहे सयून के चौगिर्द और भी पहाड़ों का सिलसिला था और है। जैसे हिमालय का सिलसिला है, वैसे ही वहां भी पहाड़ों का एक सिलसिला है। और खुदा ऊपर से निगाह करता है और अपने बंदा के वसीला से यह बात कहता है कि जैसे यरूशलेम नहीं घिरा हुआ पहाड़ों से, हां जी घिरा हुआ है, यानी घेर रखा है पहाड़ों ने यरूशलेम को। आगे खुदावन अपने लोगों को वैसे ही अब से अब तक घेरे रहेगा, घेरे रखेगा। मैंने पहले कहा कि यरूशलेम एक पहाड़ी सिलसिला के दरमियान कायम है और खुदा के लोग उस पर भरोसा करते हैं जिसने उस शहर को इन पहाड़ों से कायम रखा हुआ है। और एक दफा फिर जरा ज़बूर नबीस के जमाने में जाएं, जब जायरीन दूर दूर से हैकल की जियारत के लिए आते थे, काफलों की सूरत में, जमातों की सूरत में, टोलियों की सूरत में, तो उस वक्त ये मज़ामीर गाते हुए आते थे और उनको पहले शायद वही पहाड़ों का सिलसिला नजर आता होगा और सोचते होंगे, हां अब हम कोहे सयून को भी देखेंगे। फिर जब और करीब जाते हुए होंगे उनको वो कोहे सयून भी नजर आता होगा। फिर जब खानाए खुदा नजर आता होगा, कितने खुश होते होंगे कि अब हमने खुदा के घर का नजारा कर लिया और अब हम वहां पर जाएंगे। खुदा अपने बंदा की मार्फत, गोया खुदा का बंदा यूं बयान करता है इस्राएल के लोगों के लिए और आज मेरे और आपके लिए भी, कि अगर हमारा भरोसा खुदाबंद हमारे खुदा पर है तो कितनी देर के लिए? 1 महीने, 2 महीने, 10 साल के लिए, जब तक जिंदा है? नो। यहां पर यह लिखा हुआ है कि वो अपने लोगों को, यानी ज़बूर नवीस कहता है खुदा की आवाज बनते हुए कि अब से अब तक खुदा अपने लोगों को घेरे रहेगा। दुश्मनाने इस्राएल कई बार यरूशलेम पर धावा बोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन पहाड़ उनको उस तौर पर यरूशलेम की वो तबाही और वो बर्बादी जो असल में वो करना चाहते थे, हमेशा के लिए नहीं कर पाए और ना ही कभी
कर पाएंगे, ये एक अहम तरीन बात है। और आप जानते हैं कि यहां पर लिखा है, खुदावन अपने लोगों को अब से अबद तक घेरे रहेगा। याद है कि मसीह जब यरूशलेम की तरफ पहाड़ पर थे और वो देखते थे और कहते थे, ओ यरूशलेम, ए यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने पैरों के नीचे अपने बच्चों को छुपा लेती है, मैं तुम्हें छुपा लूं, लेकिन तुमने ना चाहा। मत्ती की इंजील, मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, उसकी आखिरी आयत में मसीह खुदावंद क्या फरमाते हैं, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन, हालेलुया। यह खुदा का वादा खुदा के लोगों के लिए है, मेरे और आपके लिए। और यह भी कि जैसे खुदा इस कोहे सयून को संभाले हुए है, हिफाजत करता है खुदा, इसके संभाले जाने और इसकी हिफाजत के पीछे ज़बूर नवीस गोया ये कह रहा है कि शर्त इस हिफाजत की यह है कि तुम खुदा पर भरोसा करो। ए कौम बनी इस्राइल, अगर तुम चाहते हो कि खुदा अब से लेकर अब तक तुम्हारा मुहाफिज हो, तो फिर तुम खुदा पर भरोसा करो। शर्त यह है, और आप इस बात से नावाकिफ नहीं है कि कई बार इस्राइल ने भरोसा नहीं किया और उनका अंजाम क्या हुआ। आप अच्छी तरह से इस बात की बाबत जानते हैं। आयत नंबर 3 यहां लिखा है, क्योंकि शरारत का आसा सादिकों की मीरास पर कायम ना रहेगा। शरारत का आसा सादिकों की मीरास पर कायम नहीं रहेगा, ताकि सादिक बदकारी की तरफ अपने हाथ ना बढ़ाएं। एक बात तो यह है, ज़बूर नवीस पाक रूह की तहरीक से यह कह रहा है कि जो शरीर है ना, शरीर, उनका असा का मतलब इख्तियार है। आमतौर पर लोग आसा पढ़ते हैं, स्टफ जो हाथ में चरवाहे लाठी रखा करते थे, यह लफ्ज आसा है। और वो ये कह रहा है कि शरारत का, शरीर लोगों का, बदकारों का इख्तियार सादिकों पर कायम नहीं रहेगा। सादिकों पर, जो रास्तबाज लोग हैं, एक तरफ शरीर लोग, खुदा को ना मानने वाले, और दूसरी तरफ खुदा के लोग हैं। खुदा के लोगों, शरीरों का तुम पर कब्जा नहीं होगा, वो तुम पर काबिज नहीं होंगे। ये अहम तरीन बात है। क्यों नहीं होंगे? इसके पीछे सबब क्या है, क्या वजह? ताकि सादिक बदकारी की तरफ अपने हाथ ना बढ़ाएं। यह अहम तरीन सदाकत है यहां पर, जो हमारे लिए गौर तलब बात है। एक बात तो यह है कि यह शरीर गैर अक़वाम के बादशाह भी थे, इसमें कोई शक नहीं है, जिन्होंने इस्राइल के साथ अक्सर बुरा करने की कोशिश की। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि इस्राइल के अपने भी, जो यहूदा का इलाका था या यहूदिया
का सूबा जिसमें बैतलहम भी और यरूशलेम भी थे, वहां के बादशाहों में से अक्सरियत ऐसों की थी, हालांकि वो इस्राएली थे, अक्सरियत ऐसों की थी जिन्होंने खुदा के हुजूर बगावत की, और ये यहूदा और बेन्यामीन के कबीला से बादशाह थे। लेकिन याद कीजिए, सादिक को जुम्बश ना होगी। जो लोग सादिक थे, खुदा के साथ जिनका ताल्लुक था, उनका बाल भी फीका नहीं हुआ। यह खुदावन की तारीफ के लिए मैं कह रहा हूं। यहां इसका मतलब यह है कि क्यों शरीरों का हाथ रास्तबाजों पर बढ़ा ही नहीं रहेगा? इसलिए कि जो रास्तबाज और सादक हैं, कहीं वो भी शरारत की तरफ माइल ना हो, इसलिए शरारत का आसा सादकों पर कायम नहीं रहेगा। आयत 4, ए खुदावन, ये खुदावन यहां पर लफ्ज यहोवा अहदे अतीक की बात कर रहे हैं। ए खुदावन, भलों के साथ भलाई कर। ये अहदे अतीक की बात थी, अभी मसीह खुदावन नहीं आए थे। यानी जो भले हैं उनके साथ तू भला कर, और उनके साथ भी जो रास्त दिल हैं। बात यहां पर एक ही है कि भलों के साथ भलाई कर। कोहे सीना से जो शरीयत दी गई थी, उसका लुबे लबाब यह था कि उसकी फर्मा बरदारी करने वालों पर खुदा की बरकत होगी, और जो उसकी फर्मा बरदारी नहीं करते, शरारत पर कायम है, शरीर है, उन पर लानत, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों और दुख और तकालीफ। लेकिन जब हम नए अहदनामा में आते हैं, मसीह खुदावन के बाद की बात, तो हम भले नहीं थे। आप में से कौन भला था? कोई भी नहीं। लेकिन हम जो नालायक और निकम्मे और बेवजूद और शरीर और गुनाहगार थे, खुदा ने हमारे साथ भलाई की है। खुदावन की तारीफ हो। और ऐसी भलाई कि हम कंगालों को उसने घूरे से निकालकर अपने साथ तख्त पर बैठाया। यह एक मामूली नहीं बल्कि गैर मामूली बात है, बहुत बड़ी बात है। हमारे पास ऐसे अल्फाज नहीं कि हम इन अल्फाज का किस तौर पर खुदावन का शुक्र अदा करने वाले हो सके। और भलों के साथ भलाई कर, और उनके साथ भी जो रास्त दिल हैं। और आखिरी आयत, लेकिन जो अपनी टेढ़ी राहों की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन जो अपनी टेढ़ी राहों की तरफ मुड़ते हैं, उनको खुदावन बदकिरदारों के साथ निकाल ले जाएगा। मैंने पहले कहा कि खुदा अहद जदीद में मसीह के आने के बाद इस नए अहद के लोगों को, हम जो किसी लायक नहीं थे, उसने हमें चुन लिया और अलग कर लिया। लेकिन मसीह से पहले की जब हम बात करते हैं, तो जो भले थे, जो रास्तबाजी पर कायम रहते थे, उन पर बरकत होती थी। जो नहीं थे, उनके लिए सजाएं थी। आज हमारी बरकत का राज मसीह यसू पर ईमान लाने से है। यह पहले नंबर पर बात है। उसके बाद मसीह की फर्माबरदारी, शरीयत के अहकाम वहां पर ऑलरेडी मौजूद है। पहाड़ी वाज में खुदावंद यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमें बताया है कि हमें क्या करना है। लेकिन जो अपनी टेढ़ी राहों की तरफ मुड़ते हैं, याद कीजिए कि बनी इस्राइल में से
इसराइल और यहूदा दोनों में से लोग, इसराइली लोग, खुदा के लोग टेढ़ी राहों पर चले। यही तो वजह थी कि जो शुमाली सल्तनत थी वो असीर होकर असूर ले जाई गई, और जो जनूबी सल्तनत थी यहूदा की, उसको बाबल ले जाया गया असीर करके। क्यों? राहें टेढ़ी थी। यही यहां पर बात है। और बताया है उनको खुदावंद बदकारों के साथ, बदकरदारों के साथ निकाल ले गया, असीर हो गए। यही बात यहां पर हमें नजर आती है। और फिर इस जबूर का इख्तिताम वो एक दुआ से करता है, और वो क्या थी? शालूम इसराइल, यानी इसराइल की सलामती हो, इसराइल की सलामती हो। यह सलामती के लिए लफ्ज शालूम इस्तेमाल हुआ है। यह इब्रानी जबान का लफ्ज है। इस दुआ के साथ इख्तिताम होता है, इसराइल की सलामती हो। और मैं जब स्टडी कर रहा था, मुझे यूं लगता था जैसे जबूर नवीस कहीं ऊंची जगह पर खड़ा है और अपने हाथ बुलंद करके इसराइल की तरफ, खा वो शुमाली सल्तनत थी, खा वो जनूब की थी, उन पर हाथ बढ़ा के शायद जमात पर वो ये कह रहा था, कलमाते बरकत दे रहा था, इसराइल की सलामती हो। मेरे अजीजों, इसी दुआ के साथ मैं ये कहूंगा, खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी मुझसे और आपसे यूं जाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मोआ। शुक्र हो खुदा की इस मोहब्बत के लिए। और आज मैं यही आपके लिए दुआ करूंगा, शालूम, मसीह खुदावंद के लोगों, आप पर खुदावंद की सलामती हो। खुदावंद इस कलाम के पर सोचने और गौर खोज करने का मुझे और आपको फजल अनायत फरमाए। छोटी सी दुआ के साथ इख्तिताम करूंगा। रब्बुल अफ़वाज, लश्करों के खुदा, शुक्र अदा करते हैं कि आज फिर आपने हमें आगाह किया कि बरकत और सलामती और तहफ़्फ़ुज़ आपकी फर्माबरदारी में है। हमें अपनी फर्माबरदारी में चलने का फजल अनायत फरमाइए ताकि आपका जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। खुदाबंद, मेरे वो भाई और बहनें जो फेसबुक के इन पेजेस पर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट्स लिख रहे हैं और लिख चुके हैं, मैं उनकी इन प्रेयर रिक्वेस्ट्स को नहीं देख पा रहा और ना ही जानता हूं, लेकिन खुदावंद आप तो पहले ही जानते हैं कि आपके लोगों ने क्या लिखा है। यीशु के नाम से हम मिन्नत करते हैं, अपने लोगों की झोलियां भर लीजिए, बीमारों को शिफा दीजिए, बंद दरवाजों को खोल दीजिए और पीतल और लोहे के बैंडों को यीशु के कुदरत वाले नाम में तोड़ दीजिए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दें। फिर मिलेंगे, लेकिन जब खुदावंद की मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।